Assalamu alaikum everyone. Welcome to हम सब TV's program The Young Guns with your host मीशा उस्मान. आज का हमारा शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा शो इज़ ऑल अबाउट आवर नेशनल हीरोज़ एंड इट्स ऑल अबाउट नेशनलिज्म. नेशनलिज्म के हवाले से ये बात है कि आजकल के ज़माने में और हमारी जनरेशन में पेट्रियाटिज़म और नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है. एक बहुत ही ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो गया है और हम लोग नई नई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू आर हेरिटेज और जो हमें देनी चाहिए थी चीज़ें जो हम लोगों को बचपन से सिखाई गई हैं. इसीलिए हमने आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जो एक बहुत ही डिफरेंट वेंचर कर रहे हैं थ्रू देयर क्लचेस एंड थ्रू देयर टी शर्ट्स. तो आइए मिलते हैं रविश के ओनर होर से. अस्सलाम वालेकुम होर, वेलकम टू आवर शो. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. जी, सो होर, व्हाट इज़ रविश एंड व्हाट डज इट डू? बेसिकली रविश कम्स फ्रॉम अ पर्शियन ओरिजिन, ठीक है, एंड इट मींस स्टाइल, अंदाज, ठीक है. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ प्रमोट पाकिस्तानी कल्चर एंड its celebrities and heroes through our articles. Wonderful. What kind of articles? Initially, we have started our clutch line for women, and the T-shirts. And T-shirts, that's also in progress. अच्छा, wonderful. तो T-shirts आपकी सारे sizes में available होती हैं? जी जी, all the standard sizes, small, medium, large, extra large, that's अच्छा, available. wonderful. I'm so glad कि आपका extra large भी है because extra large कुछ लोग नहीं offer करते and then it is a problem because कुछ लोग बल्कि होते हैं and they really want कि ज़रा Yes, definitally. I खुली shirts हों. Especially in my mind when I was placing orders, so that's why. That's wonderful. अच्छा, और मुझे बताइएगा कि रविश, how did it come into being? कैसे start हुआ? It all started very randomly. One of my cousins was posted in Quetta. He's in Air Force. So his wife called me and said कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा handicrafts हैं, तो we should do something. Since I'm in Quetta, you should be managing all the stuff in Lahore. Since you are in Lahore, so you can manage it well. बिल्कुल. And since I had time because I wasn't doing any job, so I said why not? So then we just started it off that way. अच्छा. And yes, it was in Ramadan, so we were planning to cater the Eid shopping and stuff. 2017 Ramadan. Yeah. अच्छा, 3 to 4 months back. Wonderful, wonderful. Yes. तो तब आप क्या करते थे? Basically वहाँ से handicrafts मंगवाते थे और Yes, she used to go and shop all the stuff from the original, handcrafts persons, and she used to parcel them to Lahore, and I used to. We had started our Facebook page as well, so we sold it through. अच्छा, वो Facebook. रविश के बैनर के अंडर ही आता था? Yes, that was under Ravish's banner. Wonderful. तो how did you jump to clutches and T-shirts? Okay, soon after Eid, my cousin got posted. अच्छा. So it all ended over there because obviously someone needs to be in Quetta and Balochistan area to be, who can take care of the stuff which is being बिल्कुल. bought. You can't just blindly trust the guys कि अच्छा जी आप ये भेज दें, वो कहते हैं because Exactly. काफ़ी risky होता है वो. बिल्कुल बिल्कुल. So that's why, but I had always this obsession with Pakistani artists, celebrities and heroes since my childhood. And अच्छा. I always wanted to do something for them. तो यूनिवर्सिटी के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर ली, उसके बाद मुझे नहीं टाइम मिला कुछ भी करने का, बट दिस इज़ समथिंग which I always had in my mind. Right. So the first person that came into my mind कि यार कुछ करना चाहिए, तो वो was एधी साहब ना. बिल्कुल. तो मैंने कहा कि क्लचेस का, क्योंकि हम जो वहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स आ रहे थे ना, उनमें क्लचेस ज़्यादा थे, तो एक तरह से माइंड नहीं बना होता कि अच्छा जी क्लचेस हम सेल कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार चलो क्लचेस को इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं. सही सही. तो that's how my mood shifted.
तो टी शर्ट्स पे कैसे आए आप? T-shirts. I am a huge Pakistani music fan. ठीक है, अच्छा। nothing that always comes to the top of my list. अभी भी Wow. playlist में देखें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी गाने ही चल रहे होते हैं मेरे। अच्छा अच्छा। तो जुनून and vital signs are like love, मतलब कि their first love, they have always been there for me through my thick and thin mood swings के लिए काफ़ी इधर। तो और मुझे हमेशा से होता था कि लाइक पीपल आर वेयरिंग वेस्टर्न शर्ट्स ऑफ द बैंड्स, इवन आई डू, आई एम अ ह्यूज U2 फैन एज वेल। बिकॉज अवेलेबल ही वही होती हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास अपनी U2 के बोनो की शर्ट है, वो मैं बहुत पहनता हूँ, मतलब मुझे पसंद है। इसी तरह लिंकिन पार्क, निर्वाणा, आयरन मेडन, कर्ट कोबेन टाइप भी सारी शर्ट्स होती हैं। सब लोगों बिल्कुल। सो एंड आवर बैंड्स हैव डन वेरी मच फॉर अस। कम ऑन, वाइटल साइंस एंड जुनून, इन्होंने अपने ज़माने में, इट ऑल स्टार्टेड, द बैंड कल्चर ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ देम। उसके बाद ही आ गया। तो वी नीड टू प्रमोट देम। ठीक है, अब वो ख़त्म हो गए, इसका ये मतलब नहीं, उनकी एक लेगेसी है Exactly. जो कि कंटिन्यू होनी चाहिए। द 80s एंड 90s किड्स, जाहिर बात है हम करेंगे तभी हमारे आगे जनरेशन को पता चलेगा ना कि अच्छा वाइटल साइंस थे, उन्होंने इतनी एल्बम्स रिलीज़ की, या जुनून थे, सूफी रॉक, बिल्कुल। कितना वो पॉपुलर थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया के अंदर। सो वो इट शुड कीप ऑन गोइंग। तो जाहिर बात है हम लोग पहनेंगे और इफ विल फील प्राउड वेयरिंग देम, तभी आगे से लोग पहनेंगे ना उनको। और तभी तो यू कैन ऑलवेज एक्सपोर्ट देम, फिर बाहर के लोग पहने, दे शुड नो अबाउट अस। यस डेफिनेटली। एंड आवर कल्चर और जो सारे गाने हैं। बिल्कुल। अच्छा, सो बेसिकली फिर इंस्पिरेशन कैसे आई? मतलब ईदी साहब तो आपको आए, तो इंस्पिरेशन क्या थी? रमज़ान चल रहा है, अफ्तारी, सहरी? नहीं, रमज़ान एंडेड, रमज़ान ख़त्म हो गया था ईद के बाद। तो वो मतलब मेरा ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर नोन फॉर बीइंग टेररिस्ट्स। ठीक है, हमारे लोग बाहर रह रहे, अब हमारे पास इतने अच्छे लोग भी हैं ना, वो हाईलाइट नहीं हो रहे जिन्होंने इतना कुछ किया है। ईदी साहब डेफिनेटली कम्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इतना उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वो बंदा था, उन्होंने इतना कुछ किया। so much philanthropy ना। बिल्कुल। सो वो ही केम एट द टॉप ऑफ माई लिस्ट। मैंने कहा मैंने इनसे स्टार्ट करना है। अच्छा। सो बस फिर आई केम आउट विद अच्छा, तो इंस्पिरेशन कैसे आई आपको कि जी मैंने क्लचेस ही बनाने हैं? लाइक आई सेड कि ऑलरेडी क्लचेस मोड में था मैं, वहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट्स आ रहे थे ना, true. तो वो आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा चले क्लचेस को ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले अपना जो सबसे पहला प्रोडक्ट था आपका, वो कैसे आपने डिज़ाइन किया? वो मैंने कैसे डिज़ाइन किया, वो इस तरह, सबसे पहले तो मुझे तो पता ही नहीं था कि होगा डिज़ाइन किस तरह, ये किस तरह। आई जस्ट शेयर्ड द आइडिया विद माई फ्रेंड। ठीक। तो शी यूज्ड टू बी माई जूनियर, आई एम अ फास्ट ग्रेजुएट, तो वो वहाँ पे होती थी, मैंने उससे डिस्कस किया, तो उसने कहा हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, अभी तक इसमें किसी ने काम नहीं किया, तो यू शुड कैरी ऑन, यू शुड गो विद इट। तो लेकिन अब वो किस तरह होगा, तो सिंस आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर लाइक 6 years, तो अब वहाँ पे आई हैव मैनी ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स फ्रेंड्स, सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैं कहा यार मुझे बताओ इस तरह। फिर वो उन्होंने डिफरेंट मुझे बताया लोगों का कि अच्छा ये बैग्स बना रहे हैं, वो बैग्स बना रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करो, वेंडर्स वगैरह। तो बस फिर इट ऑल स्टार्टेड एंड इट डिडंट कम इंस्टेंटली। मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा टू बी एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन। अच्छा, तो आप मतलब अंदरूने लाहौर गए और लोगों को कांटेक्ट आपने किया वन बाय वन? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो प्रायोरिटी थी फ़ोन पे ही करूं, लेकिन फ़ोन पे कोई बात नहीं बन रही थी इस तरह ना, तो फिर आई हैड डेफिनेटली हैड टू गो एंड विजिट देम। और फिर तो सबसे पहले आपने किसको परस्यू किया, टेलर को या प्रिंटर को? नहीं, सबसे पहले मैंने टेलर, आई नीडेड अ टेलर जो कि बैग्स बना सके। सही। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सर बैग्स बनते हैं तो कहाँ से बनते हैं। बिल्कुल। फॉर दैट आई नीडेड हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स, फिर आगे से उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, और इस तरह। तो जब आप टेलर से मिले पर्सनली जाके, तो क्या रिस्पॉन्स था उनका और हाउ डिड यू गेट अलोंग? पहले तो ही वाज लाइक हाँ जी बन जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं। और मैं उसकी शॉप पे गया तो ही वाज वेरी स्किल्ड, इतने ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइंस थे वहाँ पे बड़े, लेकिन जो मैं चीज़ चाहता था वो नहीं थी वहाँ पे। ऑब्वियसली डेफिनेटली मुझे तो वो चाहिए था ना, प्रिंटेड चाहिए था, जैसे कस्टमाइज सेलिब्रिटी कस्टमाइज बेस्ड जो, ठीक है, तो वो नहीं था। तो मैंने उससे शेयर किया, तो उसने कहा कि ये तो हम नहीं काम कर सकते। अच्छा। हम आपको सी देंगे, आप जो हमें लाएंगे हम उस तरह बना देंगे, ठीक है, लेकिन हम प्रिंटिंग नहीं हम कर सकते। फिर नेक्स्ट वो थिंग वाज कि अच्छा जी प्रिंटिंग कहाँ से हो। अच्छा। फिर ही टोल्ड मी कि XYZ जगह है, वहाँ पे जाएं और प्रिंटिंग हो जाएगी। तो बस फिर प्रिंटिंग की एक स्ट्रगल हुई कि प्रिंटिंग कैसे करानी है। तो अच्छा, जब ये सब चल रहा था तो तब आप, आई एम श्योर आप जॉब नहीं कर रहे थे? जी जी। तो फैमिली सपोर्ट कैसी थी आपकी?
फैमिली बस उन्होंने कहा ठीक है करो तुम, उन्होंने मना नहीं किया मुझे, दे डिडंट से कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्कुल डिफरेंट, बिकॉज उन्हें एक तो ये था ना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन माई मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स एंड स्टफ, वो भी मेरा वेंचर साइड पे चल रहा है, सही ठीक है ना, तो उन्हें ये नहीं था कि बिल्कुल कुछ इसने बिल्कुल अनोखा काम शुरू कर दिया है, उन्हें पता है कि मैं आई हैव ऑलवेज बीन यू नो इनटू पाकिस्तानी म्यूजिक और ये सारे सेलिब्रिटीज, मतलब कि काफी ज्यादा बेसिकली सपोर्ट था आपकी फैमिली का। हाँ डेफिनेटली। वंडरफुल। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अपनी वो लाइन बनाई जो पहला आपका कलेक्शन था, इट वाज अ बंच ऑफ क्लचेस, राइट? फ्यू क्लचेस। तो आपके फर्स्ट कस्टमर्स कौन थे? First customer, the day Edisab clutches got ready, they were, I guess, in 3 to 4 designs, ठीक है. I went for a haircut. मुझे haircut करवाना था, मैं वहाँ पे गया. तो अच्छा, सबसे पहले जो एदिसाब का मैं देना चाह रहा था ना जिसको क्लच, वो that was नादिया जमील. अच्छा अच्छा, ठीक है, शी इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, ठीक है, वो ट्विटर पे इंटरेक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो और उनके हिसाब से रिलेटेड इतने ज़्यादा हैं वो, मतलब बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा करती हैं, तो मैंने कहा इस क्लच की सबसे ज़्यादा कदर ना वो बंदी करेगी, ठीक है. अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द डे दोज क्लचेज गॉट रेडी, आई टुक पिक्चर और मैंने उनको भेज दिया नादिया को, तो कहती यार ये, मैंने कहा आई वॉन्ट टू गिव यू टू देम, तो कहती यार मेरे साथ एयरपोर्ट पे बैठे हुए, आई एम लीविंग फॉर लंदन. हाँ, तो शी वाज गोइंग अब्रॉड, मतलब शी इज सेटल्ड अब्रॉड दीज डेज. तो मैंने कहा यार, मतलब कि आई वाज वेरी, मैंने कहा हो यार बैड हो गया सीन, है डिसअपॉइंटमेंट हुई. अच्छा, ये सारा कुछ उस वक्त मैं फिर हेयर कट के लिए वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे ना नूरी का ना गाना आना था इंडिपेंडेंस डे का, सही स्ट्रेप्सिल्स वाला जो था, वो ख्याल रखना वो. अच्छा, तो दे ऑल ऑफ दोज गाइज वर देयर फॉर द मेकअप, तो मंदाना वाज देयर. तो मैंने मंदाना से एक दो दफ़ा मुलाकात हुई भी थी पहले, तो वैसे ही उससे मिला है वो, तो कहती अच्छा क्या कर रहे हो. मैंने एकदम से मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैंने कहा व्हाई डोंट आई शुड गिव इट टू हर, मैं कहा ये कर रहा हूँ, मैंने कहा अभी आया तो प्लीज़ टेक इट. तो बस मैंने उनको दिया और उनका कैसा रिस्पॉन्स था? शी लव्ड इट. वंडरफुल, शी लव्ड इट. तो जो आपकी जो पहली कलेक्शन थी वो बनकर आई, जब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला, तो हाउ डिड यू फील कि मतलब यही आपकी एक्सपेक्टेशन थी या डिसअपॉइंटमेंट थी क्या? No. I was overwhelmed rather, because जो स्ट्रेच जितना फाइनली स्ट्रेच हुआ था और वो बहुत अच्छा था. फिर मैंने ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स, मतलब कि हु आर ऑलवेज देयर, मतलब उनसे हर चीज़ उनसे मैंने पूछनी है, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि यार ये बहुत अच्छे बने हुए, वो तो काफ़ी ज़्यादा मुझे उससे ना कॉन्फिडेंस आया, मैं कहा नहीं अच्छी चीज़ है वो. वंडरफुल. अब हम आपकी जर्नी के बारे में और जानेंगे, बट राइट आफ्टर अ कमर्शियल ब्रेक. सो गाइज, we're बैक फ्रॉम द ब्रेक और हम जान रहे थे रविश के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में. अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हुर ने उनको मार्केट किया, किस तरह से उन्होंने अपनी कस्टमर बेस बढ़ाई. जी हुर, तो मुझे बताइए कि आपकी जब लाइन आई, सो फर्स्ट कस्टमर्स आपके फ्रेंड्स थे और आपने जिस तरह सारा कुछ बताया, सो हाउ डिड यू स्टार्ट कमिंग इन द मार्केट और कैसे सब कुछ हुआ? फेसबुक इज़ द वेरी ऑब्वियस प्लेटफॉर्म दीज डेज, ठीक है, लेकिन उस पे भी आपको यू नीड टू हैव गुड फोटोग्राफी इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स. सो अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू रेस्क्यू मी. अच्छा, ठीक है, उसको मैंने कहा, ही टुक वेरी नाइस फोटोग्राफ्स. हम लोग कैफ़े गए एक और वहाँ जाके ना हमने पिक्चर्स ली. अच्छा, और वो काफ़ी अच्छी आ गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई. तो अब उनको फेसबुक पे अपलोड किया और फेसबुक बूस्ट वगैरह कर रहे होता आप पे वो, लेकिन इवन देन आई वाज, फेसबुक का भी जो एल्गोरिदम है जो वो बूस्ट का चल रहा होता है, वो इतना एफिशिएंटली नहीं चल रहा था. बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में मेरे पेज के लाइक्स इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उस वक्त तो बहुत ही कम थे, तो मैं टारगेट ऑडियंस जो थी ना वो सही नहीं जा रही थी. तो मुझे आई नीडेड समवन जो कि मुझे अब मेरी राइट ऑडियंस तक मुझे समहाउ पहुंचना था. तो वन ऑफ माय फ्रेंड ही रिकमेंडेड मी कि तुम ना मुहकम, काफ़ी इज़ एन आर्ट गैलरी, वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट, कहता कि यू शुड गो टू देम. ही वाज ऑलरेडी फ्रेंड्स विद देम. तो वहाँ पे मैं गया,
तो दे वर वेरी नाइस, मतलब दे वर वेरी, दे सेड कि जी हम लोग तो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अच्छा। तो आप हमें पिक्चर्स दें एंड विल डिस्प्ले इट ऑन आवर पेज, एंड दे हैव ह्यूज फॉलोइंग, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, of course. ठीक है। तो मैंने वहाँ पे उनको पिक्चर्स दी एंड दे अपलोडेड हिम, और वहाँ से मुझे ना जो मेरा प्रॉपर ऑर्डर था ना, दैट वाज फ्रॉम, योर फर्स्ट ऑर्डर? यस यस, अच्छा अच्छा दैट वाज फ्रॉम यूएस. अच्छा, Yes, वंडरफुल. and that lady ordered like 4 different clutches of Edi Saab, मतलब अपने उसने customize, because we do deal with customized things as well. अच्छा, वंडरफुल. तो उन्होंने खुद अपने कलर्स बताए कि मुझे इसमें 4 डिफरेंट चाहिए, अच्छा और अच्छा. सब पे ईदी साहब भी हों, तो दैट वाज वेरी नाइस. Wonderful. मतलब कि मुझे लगा यार कि देखें, नहीं, शी हैज़ लव फॉर हिम, मतलब इफ शी कुड हैव आस्क्ड फॉर वन सिंगल clutch, but she ordered 4 Of course, different. and she was thinking just like you. Exactly. कि मतलब ये मतलब इस तरह की चीज़ होनी चाहिए. So what do you feel about the social media platforms के Facebook है, Instagram है, Twitter है आजकल, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए? सबसे कन्वीनियंट जो है ना वो वैसे फेसबुक ही है, लेकिन इंस्टाग्राम भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है. सही. दो आई हैवंट स्टार्टेड मार्केटिंग ओवर देयर थर्ली, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. काफ़ी ज़्यादा. इंस्टा का ज़्यादा सुना है कि इंस्टा पे ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है. सही. So are you don't have an outlet right now? नो, आई डोंट हैव एन आउटलेट. सही. So आपको लगता है कि फेसबुक इटसेल्फ अलोन पूरा कर देता है इस कमी को, कि मतलब जिस तरह कस्टमर्स जो हैं वो आएँ और करें, और डू यू फील कि जी आउटलेट होना ज़रूरी है? टू सम एक्सटेंट आउटलेट होना ज़रूरी है. इनिशियली ज़रूरी नहीं है, लेकिन वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग देन यू नीड टू हैव एन आउटलेट, बिकॉज एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस कर सकें आपके प्रोडक्ट्स को. बिल्कुल. ऑल्दो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ वेरी मच इन दीज डेज, पीपल आर is. ट्रस्टिंग और कर लेते हैं. बिल्कुल. तो लेकिन बाज़ औक़ात बंदा नहीं भी करता. इफ़ आई स्पीक ऑफ माई सेल्फ, मतलब आई डोंट ट्रस्ट ऑनलाइन शॉपिंग. मुझे कि जो डिस्प्ले हो रहा होता है उस तरह की चीज़ नहीं होती क्वालिटी में. बहुत रेयर होता है कि अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाए. अच्छा, तो आपके कस्टमर्स को कभी फील हुआ कि जब जो उन्होंने प्रोडक्ट्स मतलब मंगवाए, तो उन्होंने कहा कि जी कभी किसी को इशू हुआ कि जी क्वालिटी वही नहीं है या वो? नेवर. अभी अच्छा. तक मैंने जितने भी ऑर्डर्स किए ना, इतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन फिर भी काफ़ी किए हैं, तो उनमें से किसी को इशू नहीं हुआ. वंडरफुल. तो मतलब रिव्यूज़ आपके? मेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. वंडरफुल. अच्छा, तो आप बेसिकली किस नीश को कैटर करते हैं? मैं कर रहा हूँ जो जिस तरह मेरी टारगेट ऑडियंस जो होती है ना, दैट इज़ मोस्टली जिनकी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, मतलब कि जो मेरे हु आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी म्यूज़िक, हु आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, उनको उन्होंने उनके पेजेस वगैरह लाइक किए हुए हैं या जिस तरह का. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है मेरे जो है. अच्छा, कमिंग टू योर टी शर्ट्स, तो टी शर्ट्स आपकी फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ? Yes. अच्छा, वंडरफुल. तो उसका कैसा रिस्पॉन्स है? अभी मैंने उसका अभी आई लॉन्च्ड इट ओवर द वीकेंड, पास्ट अच्छा, वीकेंड. अच्छा, तो अभी okay. बिल्कुल अभी मैंने आई जस्ट वांट टू नो कि आई एम स्टिल क्यूरियस कि किस तरह रिस्पॉन्स आता है. वंडरफुल. तो मतलब कोई कस्टमाइज भी करा सकता है आपसे? बिल्कुल, डेफिनेटली. अच्छा, टी शर्ट्स एज वेल एज द क्लचेस? यस. वंडरफुल. तो आपकी क्या प्राइस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है विद ईच कस्टमाइजेशन? Yes, it increases a little bit, but not by a huge margin like others do. Because since I'm new in the market, I have to keep this thing in my mind. राइट राइट. तो किसी ने आपसे कस्टमाइज कराया, आपने जिस तरह बताया पहले ऑर्डर आपका था? जी जी, वो उन्होंने, हाँ, बिकॉज शी हैड वन थिंग वाज देयर. एदी साहब क्लच का एक पैटर्न तो था ना, उन्होंने अपने कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो बताए कि अच्छा मुझे इसके बाकी 3 और चाहिए, वो इस कलर कॉम्बिनेशन के अंदर. अच्छा, वंडरफुल. तो जब आप मतलब कस्टमाइज़ करते हैं तो कुछ कहते हैं कस्टमर्स आपको कि नहीं जी ये मटेरियल नहीं हमें चाहिए बैग का, या फलाना मटेरियल चाहिए? कभी नहीं, अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा. दे डू आस्क कि अच्छा जी मटेरियल कौन सा है. अच्छा. लेकिन ये नहीं कहा कि कौन से मटेरियल में चाहिए. ठीक. तो कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं? हम लेदराइट. आई एम यूजिंग लेदराइट. ठीक ठीक. तो उस पर प्रिंटिंग अच्छी हो जाती है? नो नो, आई एम यूजिंग लेदराइट एट द बैक साइड. ठीक है ना, जो फ्रंट साइड पे है ना उसके लिए इनिशियली आई यूज्ड कॉटन. ठीक है. ठीक है. और अब जो है आई एम गोइंग विद सिल्क. सिल्क. यस. सिल्क में तो आई थिंक के कलर्स बहुत क्रिस्पी आ सकते हैं. यस, एग्जैक्टली. काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प में शाइनी. सो इज इट लाइक शमोज सिल्क 80 ग्राम या कोई और?
आई डोंट हैव एनी इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा, शमोज अच्छा। सिल्क है, शमोज शमोज सिल्क का सिल्क। मजीद उसकी तो शाइन ही बहुत उसकी डिफरेंट शाइन होती है। काफ़ी होती है और उस पर प्रिंट भी अच्छा आता है। अच्छा आता है। वन गुड थिंग अबाउट यूजिंग क्लॉथ इज़ के उसका प्रिंट जो होता है ना वो इतनी जल्दी फेड नहीं होता। एक बार मतलब कि अगर मेरे से इस तरह हुआ है कि अगर मेरे से कोई गलत प्रिंट हो गया है तो अगर मैं इवन इफ़ आई वांट कि मैं कोई केमिकल यूज़ करूँ या कोई मैं पानी, इट वोंट गो अवे। वाओ, इतना स्ट्रॉन्ग होता है प्रिंट। अगर लोगों को कंसर्न होगा चाहिए प्रिंट उतर जाएगा तो वो नहीं उतरेगा प्रिंट। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो जब कस्टमाइज़ करानी हो, शर्ट्स कस्टमाइज़ करानी हो, तो आपके पास क्या प्रॉपर्ली एक साइज चार्ट होता है जो आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन दें कि जी मतलब आप इस हिसाब से अपना ऑर्डर करें? आई डू हैव मेजरमेंट्स ऑफ द शर्ट्स कि आप जिसके मुताबिक बन सकती हैं वो। इसके अलावा प्रिंट का भी है कि अच्छा जी इतने डिज़ाइन इतने साइज़ पे प्रिंट आना चाहिए या क्या करना चाहिए। अच्छा, तो कोई अगर बहुत बल्की है या कोई बहुत ही ज़्यादा स्किनी है और उनका साइज़ जो है इट्स नॉट फॉलिंग इन द स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल वाला जो चार्ट है आपका, सो डू यू कस्टमाइज द साइजेस एज वेल? Yes, it can be done, but it would be a bit costly. ए बिट कॉस्टली। ठीक ठीक। बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो ज़रा टॉल ज़्यादा हैं या कुछ ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, वो एक्सेल भी उनके लिए ज़रा छोटा पड़ जाता है। सो अच्छा अच्छा, ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, कमिंग टू रविश, रविश के कोई और भी वेंचर्स साथ साथ चल रहे हैं? Ravish ke or like 2 days back I had this customer online and she wanted Nusrat Fateh Ali Khan's clutch, which is already in our collection. So what she asked me कि she needs mobile covers as well. So कहते कि you should please do something, मुझे मोबाइल कवर्स चाहिए इसी मतलब कि सेलिब्रिटीज़ के अपने आर्टिस्ट और पाकिस्तानी हीरोज़ के साथ चाहिए। तो you guys should do this. So I am kind of looking forward to it. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। एंड ये तो बहुत अच्छा होगा, मतलब पाकिस्तान को इस तरह से पोर्ट्रे करना और सारे बिल्कुल, definitely. हीरोज़ को। Yes. दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो जब आपका मतलब ऑनलाइन कस्टमर जिस तरह इस तरह की आपको देते हैं क्या कहेंगे, सजेशंस देते हैं, सो हाउ डू यू टेक देम, या क्रिटिसिज्म भी कभी कभी आपको मिलता होगा, सो हाउ डू यू एक्सेप्ट इट? पॉजिटिव सोचना चाहिए, देखें कि इट्स फॉर माय बेटरमेंट। तो बिल्कुल। आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, मतलब ठीक, नीड ठीक। टू इन ऑर्डर टू गो मूव ऑन तो करना पड़ता है। करना पड़ता है। ठीक, तो कोई आपका रेगुलर कस्टमर बना है अभी तक? रेगुलर यस, देयर इज अ लेडी इन यूके, उनको मैंने किया था ये ऑर्डर शिप किया था अपने सारे जितनी 5 सेलिब्रिटीज़ मैंने अभी तक किए हैं ना अच्छा, क्लासेस के। अच्छा। तो शी वांटेड एक एक हर किसी का। अच्छा। तो शी लाइक दिस, उन्होंने कहा कि आई विल बी हियर इन नवंबर। तो वो कहती कि Oh, मैं प्लीज़ मैं आई वांट डिफरेंट स्टफ, कहती wow. बी रेडी, मतलब कि मैंने बहुत कुछ बनवाना है यहाँ से। Wonderful. That so how, what kind of feeling do you get? Accomplishment feel होती है यस आपको? मुझे होता है बिकॉज देखिए इफ़ शी इज़ इन यूके एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, ठीक है, वो जा रही हैं अपनी वर्किंग स्पेस पे जा रही हैं एंड शी इज़ कैरिंग लेट्स सपोज एधी साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। बिल्कुल। तो एक होती है ना एक्नॉलेजमेंट ही होती है, वहाँ पे होंगे इंडियंस होंगे, इवन फॉरेनर्स होंगे, कोई अच्छा दे विल डेफिनेटली आस्क हु इज़ ही, हु इज़ शी, एंड देन बिल्कुल। शी कैन प्राउडली से कि अच्छा जी ये है नुसरत अली खान, इनका इतना इन्होंने क्या क्या किया है और म्यूजिक। रविश से मैंने ऑर्डर किया है इस तरह से। यस डेफिनेटली, वो तो रविश तो बाद में आ जाता है सीन, लेकिन मेन मेरा फोकस तो अपना आर्टिस्ट को है ना करना। वंडरफुल। तो अच्छा, और आपको कॉस्ट्स पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आप एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं बाहर, तो फिर तो क्लचेस की शिपिंग चार्जेस, तो फिर तो क्लचेस की प्राइस में कोई वेरिएशन होती है? अभी मैंने नहीं की, जबकि होनी चाहिए, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग फॉर द शिपमेंट चार्जेस बिकॉज शिपमेंट चार्जेस आर वेरी मच, सो द कस्टमर्स नीड टू पे द शिपमेंट चार्जेस। ग्रेट। और जब आपका विद इन पाकिस्तान कोई ऑर्डर करता है? यस यस, नो आई एम नॉट टेकिंग एनी शिपमेंट चार्जेस। अच्छा अच्छा, वंडरफुल। तो आपका क्या प्राइस रेंज होती है क्लचेस की? इट्स लाइक अभी तो वो है कांस्टेंट है एंड दैट इज़ ₹1500। अच्छा, वंडरफुल। और टी शर्ट्स की आपकी? अभी टी शर्ट्स जो है मैंने जो बनवाई हैं दोज आर वेरी इकोनॉमिकल, 850 ईच। अच्छा, वंडरफुल। सो यू नॉट इवन टेकिंग शिपमेंट चार्जेस के, अगर आप मतलब एक टी शर्ट या 2 टी शर्ट्स कोई आपको करता है ऑर्डर, तो वो तो आप 1600-1700 में ही बस हो जाता है? दे डोंट नीड टू पे 250 या 200 No, रुपीज़ no, no. एक्स्ट्रा? They don't need to pay anything. Wonderful. Although there's a
I need to do a little variation in the t-shirts because since अभी मैंने launch किया I want to see the response. तो मैंने जो उसका stuff है ना, I definitely want to do variation in it. I want to go into finer stuff. Right, right. And in that case, definitely price will go a little up. Of course, of course. तो आपकी हाफ स्लीव्स भी होती हैं, फुल स्लीव्स भी होती हैं? Abhi, since winter is almost here, so I didn't do the half sleeves shirts. Definitely, I'll be focusing it on this in the spring. अच्छा, उसमें अच्छा। half sleeves shirts भी हो. वंडरफुल। तो मुझे आप बताएं कि जब आपको कस्टमर्स आते हैं आपके पास और ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये क्या फील किया है कि कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? कस्टमर का सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है प्राइस ही होता है. प्राइस, ठीक है. अब वो एक अननोन ब्रांड से जब कर रहे होते हैं तो उनका होता है कि बिल्कुल ही सस्ते में कुछ मिल जाए ये वो ना. तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है. इस केस के अंदर अगर आउटलेट हो तो ज़्यादा बेहतर. अच्छा जी वो देख लेंगे अच्छा जी इज़ द प्राइस वर्थ इट और नॉट. बिल्कुल बिल्कुल. बट पीपल डोंट वांट टू स्पेंड. They don't want to spend money. We will talk more about the customers और ज़रा insight लेंगे, but right after a short break. So guys, we're back from the break और हम बात कर रहे थे रविश के ओनर से, होर से, और हम ये बात कर रहे थे कि कस्टमर रिस्पांस बेसिकली किस तरह का होता है. तो प्लीज़ कंटिन्यू. होर आप मुझे बताएं कि कुछ इस तरह भी कस्टमर्स होते होंगे जैसे मतलब जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि जी कलर्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए आपके क्लचेस में, या स्ट्रैप्स ज़रा लंबे होने चाहिए, कुछ इस तरह के भी आपके होते होंगे. डेफिनेटली. अभी मेरा डिस्प्ले था 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे मुझे आया था फीडबैक कि समथिंग बिगर इन साइज़ के जो हम कैरी कर सकें. एंड द लेडी वाज फ्रॉम आई गेस शी वाज फ्रॉम टर्की. अच्छा. ठीक है. तो वो उनकी ये थी कहती कि मैंने तो ट्रैवल जो करना होता है ना, तो एनीथिंग विच इज़ बिगर इन साइज़ जो मैं कैरी कर सकूँ विद खान साहब पिक्चर और नेट, ताकि अच्छा, पता चले. ये बहुत ज़्यादा है कि क्लचेस पे इतने ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं कर सकते. ठीक है. लोगों को चाहिए कि लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा हो, पता चले कि जी हमने किसका किसकी इमेज है वो पता चल जाए. तो ये बहुत ज़्यादा था उनका आया. वंडरफुल. तो जब आपका कोई कस्टमाइज़ कराना चाह रहा होता है प्रोडक्ट, तो उसके कलर्स भी चेंज हो सकते हैं? जी डेफिनेटली कलर्स भी कर सकते हैं. और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्पिरेशन, अगर किसी कोई और इंस्पिरेशन है तो वो अपनी इंस्पिरेशन बताएं कि अच्छा जी वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम और हर, तो हमें प्लीज़ इसका चाहिए. वंडरफुल. तो मतलब कोट्स भी लिखवा सकते हैं? यस. मुझे इनफैक्ट वन ऑफ द कस्टमर्स ही वाज फ्रॉम कराची. तो जब मैंने फैज़ साहब का क्लच किया ना, तो उसने कहा कि मुझे ना फैज़ साहब की पोइट्री चाहिए. तो उसने फिर मुझे पोइट्री बताई कि अच्छा जी मुझे ये अपने उसके ऊपर चाहिए. अच्छा अच्छा. वंडरफुल. तो आर यू थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ लाइन विद written things on it, quotes? Yes, quotes matters. Quotes को भी that's already in the pipeline. Wonderful, wonderful. अच्छा मुझे बताइए कि डिज़ाइन आप सब कुछ खुद करते हैं? डिज़ाइन सारा मैं कंप्लीट खुद नहीं कर सकता बिकॉज थोड़ा सा मुझे हेल्प लेनी पड़ती है. तो आई डू हैव फ्रेंड्स लाइक आई सेड कि ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स हैं, तो मैं डेफिनेटली टेक देयर हेल्प. अच्छा अच्छा. सो यू हैवंट डन डिज़ाइनिंग योरसेल्फ? नो. अच्छा. सो आपकी डिग्री क्या है फिर? माय मेजर्स वर कंप्यूटर साइंसेस. अच्छा अच्छा. सो सच ए डाइवर्स फील्ड जो आपने अब चूज़ की, तो हाउ कम? रीज़न बीइंग कि आप दैट इज़ वन पार्ट ऑफ मी. ठीक है ना. तो ये मैंने लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, इट वाज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज ट्राइंग टू डू सिंस माय यूनिवर्सिटी डेज कि मैंने कुछ करना है. बिल्कुल. फॉर माय हीरोज़. ठीक है. और थोड़ा मेरा दिमाग वैसे भी क्रिएटिव है, तो मतलब शौक है मुझे कुछ डिफरेंट करने का. ठीक है. तो इफ़ आई एम डूइंग समथिंग जो कि मैंने अपनी प्रोफेशनल तो कर लिया ना, पूरा कर लिया मैंने, और अब मैं प्रोफेशनली डिग्री कर ली, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी आ गए, तो मेरे ख्याल से देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग समथिंग. अभी तो टाइम था सारा कि मैं मतलब अपना को इस्टेब्लिश कर लिया और उसके बाद जो है साइड पे दूसरी चीज़ भी आप कर सकते हैं. वंडरफुल. तो आपकी डिग्री से रिलेटेड आपको क्या हेल्प होती है आपके इस वेंचर में? बहुत ज़्यादा. जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब कि ऑब्वियसली आई एम वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो वहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स होते हैं, मार्केटिंग वाले. एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है. टेक्निकली तो होते ही होते हैं, टेक्निकल प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, साथ साथ आपकी मार्केटिंग टीम होती है, यू हैव ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स. तो मतलब कि ऑब्वियसली मैंने तकरीबन 6 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, तो सबके साथ मेरी
है मतलब कि ना नो हाउ, तो बंदा हेल्प ले सकता है उनसे। तो ये बहुत बड़ा एज था मुझे कि मार्केटिंग किस तरह करनी है। और जिस तरह डिज़ाइंस का आपने पूछा, बिल्कुल, तो मतलब कि माय फ्रेंड्स आर देयर जो कि फॉरेन एक्स कोलीग्स हो गए, जो कि अब दोस्त हैं, तो वो हेल्प कर देते हैं कि अच्छा जिस तो तरह। आपकी अपनी डिग्री से आपको मतलब जो आपने पढ़ाई की इन 4 इयर्स आई बिलीव, यस, तो उससे आपको क्या हेल्प हुई इस चीज़ में? उससे हेल्प ये हुई बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर खाली कन्वेंशनल नहीं थी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंप्यूटर साइंसेज हैं, एक बड़ी हमारे सोशल साइंसेज भी थी उसके अंदर। वी हैड सब्जेक्ट्स मतलब इलेक्टिव्स थे सारे। और इवन जिस तरह कि अगर लेट सपोज कि मैं जिस तरह मैं ऐप्स पे काम कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप्स पे काम कर रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। या वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हम कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, यूज़र इंटरफेस वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वी नो कि अच्छा जी ये सूट करेगा, ये सूट नहीं करेगा। ये हमारे वी यूज्ड टू हैव ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कोर्स, उसके अंदर सारा वो दैट वाज बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग कि अगर आपने कुछ इंटरफेस बनाना है, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो वो क्या होगा, तो उसको आप इसमें मैप कर सकते हो ना कि किस तरह अच्छा ये कलर कॉम्बिनेशन सही रहेगा, वो होगा। तो डेफिनेटली दैट हेल्प मी एज वेल। और फिर उसके अलावा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, आपकी मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस वगैरह, वो तो चल रही होती हैं, डेफिनेटली, यूनिवर्सिटी के ने वो भी सिखाया हुआ है, तो दैट डेफिनेटली हेल्प मी आउट। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक, तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी फ्रेंड्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब ईच वन ऑफ देम। वंडरफुल। यस, सो मतलब आर दे योर कस्टमर्स एज वेल? yes they are customers, few of them are my customers as well। अच्छा, तो लेकिन अच्छा। उनका सपोर्ट वर्ड ऑफ माउथ ही, मतलब कि हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव करना, मेरी चीज़ों को प्रमोट करते रहना, या मुझे सजेशंस देना, या बिल्कुल। हेल्प करना दूसरे तरीके से, तो दे हैव ऑलवेज बीन देयर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि फ्रेंड्स जब होते हैं और इतने क्लोज भी होते हैं कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि नहीं जी हमें तो वो हो रहा है बड़ा अच्छा दोस्त है तो वो तो फ्री में भी दे देगा, तो इस तरह की भी कभी कोई सिचुएशन आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। अभी दे आर लाइक कि यार अभी तुम एस्टेब्लिश हो जाओ तो फिर हम लेंगे तुमसे। वो ये कह रहे हैं कि अभी हम तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी जब तुम फिर तुमसे फिर लूटेंगे, नहीं। जब एक बार तुम प्रोमिनेंट हो जाओ फिर कुछ करेंगे। वंडरफुल। नहीं, ये फ्रेंड्स का सपोर्ट तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, गुड। तो मुझे बताएं कि जो आपकी ख़वातीन की लाइन है उसके हवाले से आप कुछ चेंजेस, मतलब जैसे आपने कहा कि आपको टर्किश लेडी ने बोला है कि जी आपका स्ट्रैप ज़रा लंबा हो बिकॉज शी वांट्स टू, शी ट्रैवल्स अ लॉट, तो उस सिलसिले में कभी आपने ये फील किया कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बैग्स भी बनाए, जैसे टोट बैग होता है या कोई और बैग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो ये फोकस थोड़ा जा रहा है अभी, वो है स्टूडेंट्स बैकपैक्स की तरफ, जो कि दे आर कैरिंग इन यूनिवर्सिटीज़, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दे कैन बी कस्टमाइज्ड एज वेल। तो दैट्स उस वो नाइस। मेरा काफ़ी ज़्यादा है। लाइक आई सेड कि मोबाइल कवर्स, और फिर वो और ये बैकपैक्स जो हैं, वंडरफुल, तो इनके बिकॉज ऊपर आई जा थिंक रहा आपके जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट ऑडियंस में भी बड़े अच्छे तरीके से आपके हूँ। वो बिल्कुल बिल्कुल। फॉल करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। सो सिंस आपने बताया कि रविश काम करता है जो पाकिस्तानी हीरोज़ और उनको प्रमोट करने के लिए, तो आपने कभी सोचा कि कुछ सोवेनियर्स, मतलब उस तरह की भी लाइन हो आपकी? यस डेफिनेटली। वो जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर का मुझे मैसेज आया कि शी नीडेड समथिंग फॉर हर हस्बैंड, जब उनका नुसरत फ़तेह अली खान की शर्ट चाहिए कुछ इस तरह का, तो मैंने उनको ऑप्शन दिया, मैं कहा यू कैन हैव सोवेनियर एज वेल, मतलब कि समथिंग यू कैन पुट ऑन योर द टेबल, अच्छा। क्योंकि प्रिंट ही है ना आप, मतलब कि यू कैन यूज़ लेदराइट, और you can have a wall hanging type or photo frame something like that, तो आप कुछ कर सकते हो सर। वंडरफुल। तो वो बिकॉज कुछ लोगों को, या पर्सनली हम लोगों को, जब हम लोग व्हेन वी ट्रैवल अब्रॉड वी प्रेफर कि जी कोई कीचेन हमें मिल जाए या हमें कोई मैग्नेट्स मिल जाए, तो हैज़ रविश थॉट अबाउट सच थिंग्स? We are always open to suggestions, तो definitely इस दैट्स तरह। नाइस। सो डू यू थिंक कि आपकी मतलब फिर कॉस्ट पे डिफरेंट कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर आप इस तरह की कोई लाइन स्टार्ट करते हैं सोवेनियर्स की? नहीं, मेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा। आगे चीज़ें होंगी उनका आई कांट से कि अच्छा जी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है और मैं उनकी क्या प्राइस रखूँगा, ठीक, ठीक। तो वो तो जब बनेगा तभी आई कैन हैव अ बेटर आइडिया। वंडरफुल। अब आप मुझे बताएं कि आपने प्रोफेशनली सोचा है कि मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करें और प्रॉपरली कोई रविश जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक्सपोर्ट वहाँ करना स्टार्ट करे, जैसे आपके कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे जो बाहर होंगे, तो
उनके साथ आपने कब कोई पार्टनरशिप का कभी प्लान किया? पार्टनरशिप का तो नहीं प्लान किया हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा हुआ है कि प्लीज़ ऑल दोज हु आर लिविंग इन अब्रॉड, अभी मैंने उसको इतना रिग्रेस नहीं किया, बट आई एम प्लानिंग टू इन्वॉल्व देम, क्योंकि जो ज़्यादा मेरा है ना टारगेट द जो अब्रॉड होता है उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की ना, टू फील पेट्रियाटिक एंड, तो फिर वो डेफिनेटली वो ज़्यादा मेरा है। अभी मैंने उसको इतना रिग्रेस नहीं किया, मैं उसको चाह रहा हूँ कि जो हैं मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, मैंने एक दो से बात भी की है कि मैंने कहा प्लीज़ स्प्रेड दिस थिंग इन योर सर्कल, ताकि ज़्यादा अच्छा हो सके वहाँ पे। वंडरफुल। अब मुझे आप ये बताएं हुर कि मतलब फैमिली मेम्बर्स में एक बंदा होता है, बंदी होती है, लेकिन बच्चे भी होते हैं, तो कभी आपने मतलब किड्स लाइन या उनकी स्पेसिफिक चीज़ों के हवाले से कुछ सोचा? किड्स लाइन का मैंने बिल्कुल डिफरेंट, सिंस लाइक आई टोल्ड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं आजकल किड्स के लिए जो काम कर रहा हूँ ना, वो आई एम वर्किंग ऑन देयर लर्निंग एप्स ना। अच्छा। तो और स्पेसिफिकली उर्दू, उसके अंदर दोबारा मेरा आ जाता फोकस नेशनलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा, कि आई अगेन थिंक कि वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। वी आवर किड्स डोंट हैव उर्दू लर्निंग एप्स, ठीक है, सारा फोकस इंग्लिश में। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, लेकिन हमारा उर्दू भी तो एक पार्ट है ना, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और उस पर काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो उस और एक ये पार्ट, तो अब ज़ाहिर बात है हम बच्चों को छोटी उम्र से ही उसकी तरफ इंक्लाइन करेंगे तभी बात बनेगी। इसी तरह द किड्स नीड्स टू बी इंक्लाइन टुवर्ड्स आवर हीरोज एज वेल। तो उनकी ये तो पेरेंट्स का काम है कि जो हमारी कलेक्शन है वो कहें कि अच्छा जी हमें कस्टमाइज बच्चों के लिए भी कुछ चाहिए वो। बिल्कुल तो डेफिनेटली। अच्छा, तो कभी किसी कस्टमर ने अभी तक आपको इस तरह से अप्रोच नहीं किया? इस तरह नहीं, किड्स लाइन के लिए अभी तक किसी ने अच्छा नहीं किया। तो मुझे आप बताएं कि टी शर्ट मतलब बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मतलब डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टमाइज़ कर रहे हैं। सो आपको कभी मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मतलब उनका इस तरह के आइटम्स हैं और मेरे भी इस तरह के हैं? सो नहीं, मतलब टी शर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, कोई ऐसी मतलब कि सैकड़ों के हिसाब से होंगी जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस जो है वो अपने बैंड्स पर है, म्यूज़िक आर्टिस्ट पर है। बिकॉज वर्ल्ड ओवर आज अभी भी मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पे चेक कर रहा था, डेफ लेपर्ड ने अभी शर्ट्स अपने 3 डिफरेंट डिज़ाइंस में लॉन्च की हैं। मतलब तो पीपल विल डेफिनेटली बाय इट, जो कि अमेरिका में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं उनके फैंस करेंगे, डू बाय इट। We have die-hard fans of Vital Signs, Junoon, Strings, ये वो सारे, और we should wear them as well. Yes. We are proud of them. We are, of course. So we should wear them as well. अच्छा, और लड़के तो पहन लेते हैं डिफरेंट साइजेस, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो कुछ लड़कियां हैं जिनको रिजर्वेशन होती हैं कि जी हाफ स्लीव्स ना हो या कलर्स ऐसे हों या साइज़ इश्यूज होता है। तो हैव यू एवर थॉट अबाउट लाइक मैटरनिटी लाइन? बिकॉज आई थिंक देयर इज़ अ बिग गैप एंड देयर इज़ अ बिग वैक्यूम व्हेन इट कम्स टू द मैटरनिटी लाइन, या जो ऐसे लोग होते हैं कि नहीं पहन पाती, मतलब दे डोंट नो कि क्या साइज़ पहनना चाहिए, या हमारी कम्युनिटी में दे नीड अ सर्टेन कवरेज, they need but they still want to look stylish and cool. तो इस बारे में आपने कभी सोचा? बिल्कुल, आई हैव स्पोकन टू माई वेंडर्स अबाउट इट, ठीक है ना। अभी ये जो जुनून और वाइटल साइंस की शर्ट से मैं कर रहा था, तो दे वर प्रीटी ओपन टू इट, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा साइज़ का इशू होता है लेडीज़ में, तो कहते हैं विल केटर इट, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सो आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड देम टू केटर दिस फॉर गर्ल्स एज वेल। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे यंगर एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें कि जब वो अगर कोई इसी तरह सिमिलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहें या सोच रहे हों, तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में उनको सोचना चाहिए या ज़रूरत है कि वो पहले करें और फिर स्टार्ट करें? नथिंग कम्स ईजी। ये अगर कोई ये सोचता है ना कि अच्छा जी मैंने पहला कुछ किया फ़ौरन ही, बहुत कम चांसेस हैं कि यू विल बी अ हिट और समथिंग लाइक दैट। और एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क लेना पड़ेगा। यू नीड टू जंप इन। जब आप एक बार जंप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उस लाइन में आगे से आगे चीज़ें निकलती आती हैं और वो चलता रहता है। अगर आप सोचते ही रहोगे कि जी हर्डल्स को सोचने इतना ज़्यादा ना सोचें। आई नो पीपल अराउंड मी जो कि हर्डल्स को ही सोचते रहते हैं, अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बस बंदा बैठा है, फिर तो बंदा कुछ करे ही ना। वंस यू स्टेप इन, आगे से रास्ते खुलते रहते हैं। अच्छा, और कैपिटल के हवाले से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यू नीड मेरा ये कि इनिशियली यू डोंट नीड टू, यू ट्राई नॉट टू हैव टू मच
ऑफ इट, मतलब एक लिमिट तक अपना करें ताकि अगर लॉस हो भी तो आपको इतना ज़्यादा फील ना हो, बहुत ज़्यादा। तो लॉस तो होना ही होता है हर बिजनेस में, कभी ना कभी तो होना होता है, लेकिन शुरू में ही अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा फिर आप बिल्कुल खाली हाथ होकर बैठ जाओगे, तो क्या करोगे? तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके ना, स्लोली स्लोली। और आप ये कहेंगे कि मोटिवेटेड रहना चाहिए। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज नीड टू स्टे पॉजिटिव। कुछ ना कुछ पॉजिटिव लें हर चीज़ में से, कुछ ना कुछ मिलेगा पॉजिटिव, इसलिए हो ही नहीं सकता कि कुछ आपको पॉजिटिव ना मिले। सही। आप मुझे बताएं फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है? फैमिली सपोर्ट मैटर्स, मतलब लेकिन ये कि अगर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं कर, उसका शौक है, उसका मतलब इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो फिर मेरे ख्याल से अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी होगा ना, वो ही और शी विल डू इट एनीवे। लेकिन अगर होगा वो अच्छा रहेगा ना, जरा फैमिली अगर खुश है मतलब, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बुरा फील नहीं होगा उनको करने। अच्छा, फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? ओहो, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स का ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा ओपन हुए हुए होते हो, ठीक है, यू आर क्लोज टू योर फैमिली, लेकिन फ्रेंड्स के साथ एक और से होता है, उन्हें सारे दे नो अबाउट टीनी टाइनी थिंग्स, कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर आपने उनके साथ यू हैव टू मिंगल विद देम, वो सारा कुछ अगर इफ़ दे आर पार्ट ऑफ योर वेंचर्स, तो फिर ज़्यादा अच्छे से आपको आइडियाज़ मिलते रहते हैं, आइडियाज़ हर वक्त कुछ ना कुछ, अच्छा यूँ करो, ये करो। टारगेट ऑडियंस से भी बड़े करीब हो जाते हैं अगर आपकी वही जनरेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। फिर आपके उन लोगों का फर्दर आगे सर्कल होता है अपना, वो प्रमोशन वगैरह ज़्यादा, आपकी वर्ड ऑफ माउथ बड़ा मैटर कर रहा होता है, बड़ा मैटर करता है। नहीं, दैट्स वंडरफुल। वी वुड लव टू विश द बेस्ट ऑफ लक टू रविश एंड द बेस्ट ऑफ लक टू यू। इंशाल्लाह आप अपने गोल सारे अचीव करें और इंशाल्लाह आपकी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश करे, बहुत अच्छा रहे। इसी के साथ वक्त होता है हमारे शो के ख़त्म होने का। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।